हम्म। Responsibilities of HRD development. Okay. So in my previous slide, we have discussed the principles of HRD, the roles of the HRD. Okay. Now the responsibilities of HRD. Okay, role and responsibility is quite similar, but some minor differences are there in between role and responsibilities. Okay, role means the role that has been given to you, eh, on the basis of your qualification, on the basis of the needs of the industries or the or any sector where you are working as an HR. And responsibilities means that has been given to you by the top level executive management's level, that you need to do with your own responsibilities. With responsibilities, then lot of risk are there. Okay, role. So this here is the with the responsibilities, you have a risk. A bit of risk is attached with you. Okay, you need to handle the situations. You need to look after the improvement of the organizations. You have to look after the revenue generated by the organizations or not. So these are the responsibilities. Responsibilities comes with the experience, with the skill, and with the knowledge of of the particular person. Okay, responsibilities means if any responsibility is given to you during your working tenures, means it means that the management find you efficient to complete that work. Okay, always remember whenever any responsibility is given to you. Okay, so remember the responsibility is given only to those candidates who are skilled oriented, knowledge oriented, and apart from that, who is dedication and hard working towards the universal, towards the industrial growth. Then only those kind of persons are given responsibilities. Otherwise, lot of means a lot of employees are there who has a job role to do without any responsibilities, who have only job role to do without any responsibilities. For example, मैं इस चीज को और आपको विस्तार रूप से क्लियर कर रहा हूं कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्क क्या है, वही समझा रहा हूं आपको. Role is means that suppose for example in an industry many employees are there, a lot many employees are there who is only come with a job role that has been assigned to them. ये आपका काम है, इस काम को आपको देखना है, ठीक है, that is the job role they are doing. But responsibilities when आपको मैनेजमेंट विश्वास करके देता है, विश्वास है कि हाँ इस बंदे में वो काबिलियत है कि इस काम को वो किसी तरह से पुल आउट कर लेगा, पुल ओवर करेगा, तब जाके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलता है. तो ये फर्क है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में. रोल सबको मिलता है. जैसे मैम ने मुझे, जेआईटीएस ने मुझे रोल दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है कि सर आप एमबीए बीबीए स्टूडेंट्स या जो भी पेपर है पढ़ाइए उसको. वाई? बिकॉज दे फील दैट Mr. Paul has the responsibilities and dedications and efficient towards his subject. He can teach the subject, he can teach the paper very well to the and give lecture on the paper very well. So this is the responsibility given by my college. Now, role is my rank that I have been assigned with a particular rank that I have been assigned with some particular paper. That is my role. But responsibilities come with many challenges, some risk, and also responsibilities come with belief by the executive, by the top level management that this person can do this work. Okay, so this is the minor differences between role and responsibilities. अगर आपसे किसी ने कहा कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल सेम है, तो नहीं, डिफरेंसेस है.
हमें कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, डिफरेंसेस है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल में। एम आई क्लियर? इसमें कोई डाउट है तनुजा, इफ यू आर लिसनिंग? यस सर। क्लियर है? यस सर तो बोल रही हो, क्लियर है यस। कंसेप्ट? रोल और यस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्क क्या है, समझा यस दिया सर। मैंने? तो अगर आपसे हाँ। किसी ने कहा कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल सेम है, तो नहीं, उसको आप फिर ये जवाब दीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली कम with efficient skill and the challenges and risk that you want to take. ओके और विश्वास से आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको नहीं मिलता है, यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको नहीं मिलता है। बिल्कुल, घर में एक परिवार में 5 सदस्य है, बड़े बेटे, छोटे बेटे, मझले बेटे, सब है, लेकिन गार्जियन उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। हमेशा देखिएगा छोटे या मझले बेटे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलता है, बड़े बेटे को नहीं मिलता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि फैमिलीज को लगता है कि छोटा बेटा या मझला बेटा जितना एफिशिएंट वे में काम कर सकता है, जितना मेहनत वो कर सकता है, शायद बड़े बेटे में वो काबिलियत नहीं है। तो ये विश्वास से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, और जब विश्वास डगमगा जाता है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज जो है आप में वो घट जाता है, देन व्हाट हैपन, देन फाइनली आपको फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे ले लिया जाता है। और जब एक बार आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लिया जाता है, इसका मतलब है, हमेशा याद रखना, कंपनी आप पे विश्वास करना छोड़ दिया है। और विश्वास एक ऐसा चीज है, बहुत एक पतला सा धागा है, कभी अगर वो ज्यादा खींचा जाता है तो टूट जाता है, फिर वो धागा कभी नहीं टूटता है। एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज और विश्वास अगर टूट जाए, भरोसा किसी पे टूट जाए, वो दोबारा पनपता नहीं है। दिस अ वेरी sophisticated things, very 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 what you can say, very soft things, okay, बहुत सूक्ष्म धागा है, और इस धागे को बचाए रखना हमारे लिए बहुत है। ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एचआरडी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आ सकता है? एचआरडी पर्सनल्स प्ले ए क्रूशियल रोल in developing and implementing HRD strategies that ensure organizational success. Okay, now their responsibilities include identifying training needs, designing and delivering development programs, and evaluating the effectiveness of HRD initiatives. तो इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है? HRD's professional play a crucial role in developing and implementing HRD strategies. HRD strategies को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको मिलता है? एक HRD एक्सपीरियंस्ड बंदे को मिलता है। जैसे मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एजुकेशन सिस्टम में, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज लेवल में, कोर्स फाइल, लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू पेडागोगी टूल व्हाट यू आर यूजिंग, ये सब बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हर एक डिपार्टमेंट को नहीं दिया जाता है, कुछ गिने चुने चुनिंदा एक्सपीरियंस्ड भरोसेमंद फैकल्टीज को दिया जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है लेसन प्लान, कोर्स प्लान तैयार करना, बिकॉज यूजीसी के टीम इंस्पेक्शन के लिए जब आते हैं, या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के टीम जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, या फिर नैक टीम एक्सपीरियंस वो सब एग्जामिन करने के लिए आते हैं, तब आपको वो सब चीजें सामना करना पड़ता है। यू हैव टू फेस दोज थिंग्स, whatever the questions they will going to make, you have to answer with correctly, with properly. अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ, इस गलती का भरपाई होल यूनिवर्सिटी या कॉलेज को भुगतना पड़ सकता है। तो सोचो आप क्या समझ रहे हो कि ऐसा वैसा जिसको जैसा तैसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाता है? नहीं, जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है उसमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, टेंशन में काम करने में वो माहिर है, टेंशन में वो कभी अटेंशन को लूज नहीं करते हैं। इस तरह का क्वालिटी वाले इंसान को ही वो
सेंसिटिव काम दिया जाता है, कोर्स प्लान प्लानिंग करना, लेसन प्लान तैयार करना, क्या क्या पेडागोगिकल टूल्स आप यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो पढ़ाई करते वक्त स्टूडेंट के साथ, ईच एंड एवरी डिटेल्स। और जहां जहां क्वेश्चन उठ सकता है वहां वहां किस तरह से आप उसे टैकल करोगे वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आप जब कोर्स प्लान लेसन प्लान तैयार कर रहे हो मींस आपको वो चीज अच्छे से आना चाहिए। और जब कोई इंस्पेक्शन टीम आके उस चैप्टर को, उस लेसन प्लान कोर्स फाइल को ऑब्जर्व करेगा, चेक करेगा, तब जो क्वेश्चंस आएगा उसके लिए आप तैयार रहे, यूनिट टू आंसर। तो इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रेटेजीज होता है वो एचआरडी तैयार करता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड इट्स अ वेरी वेरी रिस्क टेकिंग फैक्टर्स, प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग, बिकॉज आप जो स्ट्रेटेजीज प्लानिंग तैयार कर रहे हैं आपके ऊपर पूरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है दावेदार है। और फुल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे एचआरडी ने कुछ मैंडेटरी कंपल्सरी स्टेप्स लिया है। क्या? सुबह 9 बजे ऑफिस में पंच टाइम आना है। 9:10 अगर आप लेट हो जाते हो आपका 3 दिन माफी होगा। उसके बाद अगर पंच टाइम 9:10 के बाद आप करते हो आपका 1 दिन का कैजुअल लीव कट जाएगा। ये एक स्ट्रेटजीज है, ये एक पॉलिसीज है। इसे कौन प्रिपेयर कर रहा है? इसे प्रिपेयर कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब अगर ये प्लानिंग में कुछ भी गलती हुआ, कुछ भी, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज टू एचआरडी डिपार्टमेंट। The responsibilities fully go to HRD डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रेटेजीज तैयार किए हैं, आपने प्लानिंग तैयार की है। दूसरा देखो क्या लिखा है, आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स, डिजाइनिंग एंड delivering development programs and evaluating the effectiveness of HRD initiative. Apart from this, remember one thing, apart from this there is another area where the HRD department used to work. And what is the work? Effectiveness of initiative. Initiative matlab what are the steps you have taken for the consequences, or what are the steps, or what are the next plan you have taken for the successful of implementing the plan. You need to answer this. This is the strategies of and development of HRD. इसके बाद आता है identifying the training needs, conducting training needs assessments to identifying gaps in knowledge and skills and developing training programs to address those needs. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज क्या क्या स्ट्रेटेजी तैयार किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। एचआरडी का काम क्या होता है मैंने इससे पहले स्लाइड्स में आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट स्लाइड में ये बता रहा है कि आइडेंटिफाई करना, कंडक्ट करना ट्रेनिंग नीड्स, कहां कहां किस किस डिपार्टमेंट को, किस एम्प्लॉय को कब कहां क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, दैट विल बी होलली डिसाइडेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट असेसमेंट करना, एनालाइज करना वेयर देयर इज द गैप्स दैट द इंडस्ट्री इज लैकिंग बिहाइंड। कहां कहां वो गैप्स है जहां जहां इंडस्ट्रीज लैप्स हो रहा है, पीछे चला जा रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है। क्या स्किल का रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नॉलेज हम एम्प्लॉयज को और ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं ताकि वो सक्सेस कर पाए। And apart from that, what are the developing training program to address those needs? जो जो डिमांड्स एंड नीड्स का रिक्वायरमेंट है उसका कहां कहां रिक्वायरमेंट है वो एचआरडी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तनुजा, आप तो एचआरडी लेके पढ़ाई कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग प्रोग्राम्स, हाउ, कैसे किया जाता है। क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंक्लूड वर्कशॉप, सेमिनार, coaching, mentoring, and online learning modules to deliver the skill and knowledge of employees. Okay. Now, there is another part of training part which is very, very important for the employee's perspective point of view. Now, how the HRD work on that? HRD create and implement this training program. कैसे कंडक्ट करवाते हैं? थ्रू ऑनलाइन सेशंस और थ्रू समटाइम ऑफलाइन सेशंस। ऑफलाइन सेशन में जैसे सेमिनार हुआ, वर्कशॉप हुआ, वेबिनार हुआ, कोचिंग, मेंटोरिंग, ये कुछ एरियाज है जिसकी मदद से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अपने आप को या फिर एम्प्लॉइज को ट्रेंड करवाते हैं ताकि वो बड़े लेवल पे काम कर सके। अब आप अगर एक स्कूल टीचर को बोलोगे कि यूनिवर्सिटी लेवल में जाके आप पढ़ाइए बीटेक इंजीनियर्स को, ठीक है, क्या वो मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। No, sir. इट्स नॉट पॉसिबल कि एक हाई स्कूल या स्कूल का टीचर जाके बीटेक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाए, नहीं हो सकता। आपको उसके लिए यू हैव टू हैव द डिग्री फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो एमएससी या मास्टर्स, आफ्टर दैट नेट पीएचडी, then only you are qualified and eligible to teach the students of university level of BTech. इसी तरह से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हायर जगह पे पहुंचना चाहते हो तो आपको प्रमोशन की जरूरत है, हमेशा याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट से मैनेजर, मैनेजर से एग्जीक्यूटिव, या फिर मैनेजमेंट से मैनेजर से लेके उसके ऊपर एक और पोस्ट है। उसके बाद आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है उसके रैंक को, एग्जीक्यूटिव मेंबर बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी, गवर्निंग बॉडी, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट में आप आ सकते हो। उसके बाद चेयरमैन, चेयरमैन को तो अपना ही कंपनी है, चेयरमैन तक नहीं पहुंच सकते हो, उसके बाद वाला पोस्ट आपको मिल सकता है। तो इतना सारा पोस्ट में अगर आपको प्रमोशन चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज, ये 3 प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में बीइंग एज अ ट्रेनर, फ्रेशर काम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि प्रमोशन मुझे चाहिए, मैं स्केल थोड़ा बढ़ाऊं, तो आप उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू हैव अ क्वालिफिकेशन। आफ्टर दैट, हैविंग अ क्वालिफिकेशन, there is a huge requirement of skill. After that, knowledge, experience. These are the 4 areas where you have to develop. If you have developed in these 4 areas or 5 areas, then only you are eligible for higher authorities, higher bodies. ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है, इंसानों को सालों साल लग जाता है उस लेवल पे पहुंचने के लिए। कभी कुछ पहुंच तो जाते हैं, लेकिन कभी कुछ ट्राई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। Am I clear? So this is why training is very much important. And after that, we had evaluating HRD effectiveness. Evaluating HRD effectiveness. What is this? Evaluating the effectiveness of training program and HRD initiative to ensure they are meeting their objectives and contributing to organizational success. एक बात तनुजा हमेशा याद रखना, जब आप कोई एग्जाम देके आते हो,
सपोज आप कोई एग्जाम दे रहे हो, उसका प्रिपरेशंस घर में करते हो, डेफिनेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन एट होम ओनली। कैसे करते हो? कुछ मतलब कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप तैयार करते हो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह मैं थोड़ा सा ये वाला पेपर पढ़ूंगा, खाना खाने के बाद दोपहर में जो मुझे टाइम मिलता है उसमें 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद शाम को मैं थोड़ा सा जो पेपर मैंने पढ़ा उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस पे रिवीजन दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट इन द इवनिंग जब मैं पढ़ने बैठूंगा तब मुझे 2 पेपर कंप्लीट करना है, पढ़ना है और उसका क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। तो दिस इज द स्ट्रेटजीज यू हैव प्रिपेयर्ड। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द स्ट्रेटजीज आप उस पर अमल करते हो और अकॉर्डिंग टू दैट आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो। बीच में आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, मुझे थोड़ा सा अपना पढ़ाई में स्पीड बढ़ाना है, तब आपको स्ट्रेटेजीज दूसरे पे जाना पड़ेगा। ओके, यू नीड टू प्रिपेयर सम अदर स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इसके बाद क्या? इसके बाद जब आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम में जब आप एग्जाम देते हो उसके बाद घर आते हो, एनालाइज करते हो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, मुझे होप है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, तब आप ये सब करोगे। अगर आप मीडियोकर स्टूडेंट हो तो आप ये सब नहीं कर पाओगे। जो अच्छे स्टूडेंट्स होता है मेरे हिसाब से, वो एग्जाम देने के बाद आता है, एनालाइज करता है कि मुझे और कितना मेहनत करना पड़ेगा, हाउ आई नीड टू, वेयर आई एम लैप्सिंग, वेयर आई नीड टू वर्क हार्ड मोर। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। जैसे आपने अगर महेंद्र सिंह धोनी का बायोग्राफी जो सुशांत सिंह राजपूत ने बनाया था, उस बायोग्राफी में देखिएगा, एक बार महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेट मैच खेल रहा था जहां वो अच्छा बैटिंग किया कर नहीं पाया, तो उसने फेलियर में पार्टी दिया, फेलियर में अपने दोस्तों को पार्टी दिया कि वो फेल हो गया फिर भी अपने दोस्तों को पार्टी दिया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज दैट आई डोंट वांट टू लॉस दिस इवेंट। मैं ये पल जो है भूलना नहीं चाहता हूं कि मेरे लाइफ में भी उतार चढ़ाव आए हैं, और जब मैंने चढ़ाव नहीं उतार गया मेरे लाइफ से, बैटिंग स्टाइल जो है मेरा उतर गया है, तब मुझे कहां कहां फोकस करना है, कहां सबसे ज्यादा इंप्रूव करना है। आई हैड टू वर्क ऑन दैट एंड द बेसिस ऑफ दिस, महेंद्र सिंह धोनी ने उसी टेक्निक से प्रैक्टिस किया। एंड आफ्टर दैट यू रेस्ट इज हिस्ट्री दैट हाउ सक्सेसफुल विकेट कीपर एंड बैट्समैन ही इज। कितना सारा रिकॉर्ड उनके नाम पे है। तो पढ़ाई जब आप एग्जाम देके आते हो, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं कि मेरा आज पेपर में इस क्वेश्चंस को मैंने लिख नहीं पाया। क्वेश्चन कैसा था पहले उसे पढ़ेगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, क्वेश्चन में थोड़ा टर्न था, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ न्यू वर्ड्स जोड़ा गया था जिसके मुझे मतलब नहीं मालूम था, जिसकी वजह से मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटजीज एंड इवेल्युएटिंग द सक्सेस ऑफ the department of HRD or the department or your own department. Am I clear? This is the called the responsibilities of human resource development. Hope you understand. कोई doubt है तो पूछो। Any doubt? No, sir. Okay, good. Nice to listen that you don't have any doubt. Ma'am, please go to the next slide. Okay. Steps for human resource development. अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेप मुझे लेना पड़ेगा? तनुजा, ये आपके लिए है। व्हाट आर द स्टेप्स यू नीड टू टेक टू बिकेम अ वेरी गुड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? ध्यान से सुनना। सबसे पहले असेसमेंट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल सिट डाउन एंड एक्सेस योरसेल्फ। व्हाट आर माय वीकनेस एंड व्हाट आर माय स्ट्रेंथ। जहां वीकनेस है, मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं, जहां आपका वीकनेस है उसमें मेहनत कीजिए और वीकनेस को जितना हद हो सके आप उसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए।
मतलब क्या है, डिक्रीज कीजिए, और जहां आपका स्ट्रेंथ है उसे और बढ़ाइए और मजबूत कीजिए, तब जाके बात बनेगी। दिस इज कॉल्ड नीड ऑफ असेसमेंट। दिस स्टेप इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द स्किल गैप and training needs within the organization. This can be done through surveys, interviews, and performance review to determine what skill are lacking and where development is needed. चलो जी, अब तक लाइफ में कभी इंटरव्यू दिया हो? सर हेलो, कॉल पे दिए। और सर 11th में जब एडमिशन लेना चाहती थी तो वैलिड स्कूल में दी थी इंटरव्यू। नहीं वो नहीं, अपना जॉब के लिए कभी इंटरव्यू दी हो? हैव यू एवर ट्राइड फॉर इंटरव्यू फॉर जॉब? नो सर। जॉब के लिए कभी इंटरव्यू नहीं दिए हो? नो ओके, सर। अगर अभी कभी ऐसा मौका मिला तो डेफिनेटली इंटरव्यू देने के लिए कोशिश करना। सक्सेस फेलियर ये तो ऊपर वाला के हाथ में है, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। यू नीड टू वर्क हार्ड। कर्म तो आपके हाथ में है ना, फल तो भगवान पे छोड़ दो, वो फल देंगे, और वो जो फल देते हैं वो अच्छा ही देते हैं, लेकिन कर्म तो आपके ऊपर है ना। तो अगर कभी मौका मिले इंटर्नशिप खत्म करने के बाद अगर किसी जॉब में जा रहे हो तो ट्राई करना पहले ऑन कैंपस नहीं लेके ऑफ कैंपस जॉब लेना। आप पहले जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, हो सकता है आप दरवाजा के बाहर से ही वापस चले जाओ। यस, दिस इज अ फैक्ट। आपने कभी उस मोमेंट को एक्सपीरियंस किए ही नहीं है कि इंटरव्यू में बैठना और इंटरव्यू एचआर के सामने देना कितना टफ होता है। मेनी गर्ल्स आर देयर, आई हैव सीन, एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, मैंने इतने सारे गर्ल्स को मैंने देखा है कि वो दरवाजा से पहुंचने से पहले वो फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, सेंसलेस हो जाते हैं। दे नॉट इवन डेयर टू एंटर इनटू द रूम ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वो मंजर जो मैं आपको बता रहा हूं, वो मंजर आपके लिए एक चैलेंजिंग मंजर। एक 7 या 4-5 एचआर एग्जीक्यूटिव, पूरा टीम आता है। आई डोंट नो अबाउट द एनी थर्ड क्लास कंपनी, मैं जो रेपुटेड कंपनीज की बात कर रहा हूं, अगर आप वहां इंटरव्यू देना चाहते हो तो उसके लिए उनका जितना प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उनके पास बहुत बड़ा शेड्यूल, रूल्स एंड प्लान्स, स्ट्रेटजीज तैयार किया हुआ है, और वो हर एक स्टेप जो है वो स्ट्रेटजीज बेस्ड होता है। कैसे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप जब इंटरव्यू रूम में दाखिल हो रहे हो, आपने उस सिचुएशन को देखे कभी नहीं होंगे, लेकिन कभी कोशिश करना एक्सपीरियंस लेने का लाइफ में। चैलेंजिंग, एक्सेप्ट इट एज अ चैलेंज। 4 to 5 or 6 to 7 एचआर आर देयर विथ एग्जीक्यूटिव सिटिंग। एग्जीक्यूटिव मतलब उनके असिस्टेंट। वो रूम में सिर्फ उतना सारा एचआर बैठा हुआ है लाइन से, एक कंपनी के लिए, और एक इंटरव्यूई जो इंटरव्यू दे रहा है, उसे इंटरव्यू कहते हैं। उसे अंदर आना है इंटरव्यू देने के लिए। आप वो मंजर को फील करो, जब वो दरवाजा खोल के आप अंदर जाओगे और उनके सामने बैठ के पूरा इंटरव्यू दोगे, कितना चैलेंजिंग टास्क होता है। सो मच ऑफ चैलेंजिंग टास्क, अनबिलीवेबल। बहुत जन, मैंने बताया ना आपको, वो दरवाजा के बाहर से वापस चले जाते हैं, अंदर तक नहीं आ पाते। इट्स सो टफ। वो मारते तो नहीं है, डांटते तो नहीं है, उनका अपीयरेंस, एचआर को जो अपीयरेंस है, उनका जो ऑरा है, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन है उनका, इतना लाजवाब, इतना जबरदस्त होता है कि आप जितने भी प्रिपेयर करके उनके सामने जाओगे, लगेगा मेरा पास जो ज्ञान है वो आधा अधूरा है। सच चैलेंजिंग। एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज। ओके, तो लाइफ में अगर कभी इंटरव्यू देना है तो हमेशा देना,
आप अपने आप को जज कर पाओगे। दिस इज ओनली द प्लेटफॉर्म, दैट इज ओनली द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन जज योरसेल्फ कि मैं अब कहां हूं, मेरा पोजीशन क्या है, मेरा क्या इतना ओडेसिटी है, मेरा इतना औकात है कि मैं इस पैकेज पे काम कर पाऊं। जज योरसेल्फ, एंड दैट जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप उस जजमेंट लेने में और समझने में और एक्सेप्ट करने में अगर समझ जाते हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब हर बार डरते ही रहोगे, इंटरव्यू देने के नाम पे आप डरोगे, देना ही नहीं चाहोगे, तो आप फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि ये ऐसा चीज है ना, हमेशा आपको फेस करना पड़ेगा। एवरी टाइम एंड ऑन यू हैव टू फेस इंटरव्यू, चाहे ऑन कैंपस चाहे ऑफ कैंपस, चाहे डिपार्टमेंटल प्रमोशन, डिपार्टमेंटल अप्रेजल, उसमें भी इंटरव्यू चाहिए। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करना है तो इंटरव्यू दीजिए। आप कितने नॉलेज वाले हो, आपके पास कितना स्किल है, आप कितना नॉलेजेबल हो, ये आपको पता चल जाएगा। तो पहला हो गया असेसमेंट। ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन, नाउ यू नीड टू इम्प्लीमेंट योर ट्रेनिंग। बीइंग एज एन डूइंग एन इंटर्नशिप इन टाटा मोटर्स, आपने तो बहुत कुछ चीजें एक्सप्लोर किए होंगे डेफिनेटली। अगर आप रेगुलर जा रहे हो टाटा मोटर्स में, इंटर्नशिप कर रहे हो ऑन एचआरडी, इसका मतलब है आपको बहुत कुछ ज्ञान हो गया है, बहुत कुछ इल्म हो गया है। आपको पता है कि एचआरडी फंक्शन कैसे करते हैं, किस किस बेसिस पे वो फंक्शन करते हैं, इतना तो आपको डेफिनेटली नॉलेज हो गया होगा। तो द ट्रेनिंग इज द इम्प्लीमेंटेड एंड एम्प्लॉइज आर provided provided with the necessary resources and support to learn, develop new skills. This may involve classroom lecture or classroom training and on-job training और ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। ये जो मैंने पहले पढ़ा था, सेम चीज घुमा फिरा के यहाँ पर फिर दिया गया है कि ट्रेनिंग इज मस्ट, ट्रेनिंग इज कंपल्सरी for every employee and for HRD. Then only you can able to develop your career as a human resource development. ठीक है, तो these are the two important resource of development of human resource development. Number one is need assessments and number two is training implementation. समझ में आया? कोई डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चले आते हैं मैम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैम और कोई स्लाइड है? देखो इसके बाद अगर स्क्रीन शेयर हो रहा है तो देख लो। मैक्रो लेवल, मैक्रो लेवल एचआरडी मॉडल्स। मैक्रो लेवल मतलब बड़े लेवल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बिग। बिग लेवल में एचआरडी मॉडल्स कैसा होता है? मैक्रो लेवल एचआरडी मॉडल focus on the broadest context of HRD, considering the relationship between individual development and organizational success, societal well-being. These models provide a excuse me framework for understanding how HRD can contribute to the overall societal development. ठीक है, हमेशा एक्सक्यूज मी, हमेशा एक बात याद रखना, जब आप कंपनी कोई ज्वाइन कर रहे हो, कंपनी आपको ट्रेन कर रहा है, अपना पैसा खर्चा लगा रहा है, आपको ट्रेन देने के लिए लाखों रुपया खर्चा कर रहा है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको ट्रेनिंग अपनी पर्पज से नहीं, पर्सनल रीजन से नहीं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको अपना स्किल लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मैक्रो लेवल मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन ये समझता है कि मुझे ह्यूज डेवलपमेंट चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन में, नीचे से लेके ऊपर तक सबको स्किल्ड, सबको नॉलेजेबल, सबको न्यू वर्क का प्लानिंग बताते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं, स्किल सिखाते हैं, नया ट्रेनिंग दिलवाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन अब एक्सप्लोर करना चाह रहा है अपने आप को, और आपको उस फ्लो में शरीक होना पड़ेगा। यू नीड टू फ्लो, गो विद दिस पर्टिकुलर फ्लो। पहला है देखो इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सबसे पहला इंडिविजुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। थर्ड है सोसाइटियल डेवलपमेंट। दीज आर द थ्री मैक्रो लेवल डेवलपमेंट। क्वेश्चन आ सकता है, देयर मे बी अ क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्रो लेवल एचआरडी में वेयर आर द एरियाज द एचआरडी नीड टू डेवलप। तो पहला है आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यू नीड टू डेवलप योरसेल्फ इंडिविजुअली। नेक्स्ट है organizational development, through organization you need to develop, and there is a societal development, means how you corporate or how you incorporate yourself with the other employees, with other labors, with other department. ओके, तो पहला इंडिविजुअल डेवलपमेंट में क्या है? दिस लेवल फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉइज, providing them with the skill, knowledge, and competencies they need to succeed in their roles and contribute to the organization success. ठीक है? If you want an organizational success, first of all, अरे क्या हुआ इतना ठीक आ रहा है? First of all, you need to make your self development. सेल्फ डेवलपमेंट कैसा होगा? पढ़ाई, स्किल, नॉलेज, ठीक है, और अपने आप को समय देना, ऑर्गेनाइजेशन में समय देना। तनुज एक चीज कभी गौर किए हो, बहुत सारे एम्प्लॉइज, एक गौर करो, मेरा एग्जाम्पल बड़ा यूनिक होता है। कभी ये चीज कंपनी में गौर किए हो, कंपनी में आप जा रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, जैसी छुट्टी का बेल बजा, सब झोला उठाया, चल पड़ा। यस, सामने लग जाते हैं। नहीं नहीं, वो आप में है, ठीक है, आप तो इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक है। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपसे कुछ काम दिया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहा है आपको, आप उसका 10 गुना या 5 गुना कम से कम काम ज्यादा करके दे दो। आप अगर चाहते हो कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस होना चाहते हो, आप आगे निकलना चाहते हो, बहुत ऊपर जाना चाहते हो, तो इस तरह से काम करना पड़ेगा कि आपको अगर कुछ काम दिया है, काम खत्म हो गया, लेकिन उसका ज्यादा 5%, 10% एक्स्ट्रा काम करके दो। जैसे मेरा किसी सर ने, प्रोफेसर ने मुझे बताया था, व्हेन आई वाज न्यू इन दिस एजुकेशन इंडस्ट्री, तो पहले जैसे ही मेरा 4 बजता था, आई यूज्ड टू पिक अप माय बैग, पिक अप माय लंच बॉक्स एंड गेट रेडी टू गो फॉर होम। दिस वाज माय इंटेंशन। ओके, बट माय कॉलीग और माय सीनियर फैकल्टीज टोल्ड मी दैट ठीक है, घर जा रहे हो, छुट्टी है, चले जा रहे हो, लेकिन जिस दिन आपको कहा जाए थोड़ा सा रुकने के लिए कि ये काम आप कर दीजिए, सोचिएगा वो आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटीज आया है। सबके लिए ये अपॉर्चुनिटीज नहीं आता है। तनुजा, आप तुम इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हो, अगर आपको कहीं जॉब मिला और आपको कुछ नया एक्स्ट्रा वर्क कुछ घंटों के लिए आपको बोल रहा है कि आगे रुक जाइए, ये काम करके जाइएगा, आप कभी इसका नेगेटिव या विरोध या फिर कभी ऐसा फेस मत बनाइएगा कि नहीं सर आज नहीं होगा, सॉरी सर मेरा घर में ये है वो नहीं। हो सके तो रुक के वो काम करके जाइएगा।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दरवाजा या अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा बार बार दस्तक नहीं देता है। देखिएगा, जब कंपनीज का छुट्टी होता है, बेल बजता है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होता है जो अपना झोला उठाते हैं, वो काम करके निकल चलते हैं। उसका काम हो गया, बस छुट्टी, अब रुकना नहीं। इसका मतलब क्या है? रोल मिला है उसको वो काम निभाने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसको दिया जाता है वो और रुक के और काम करके कंपनीज के लिए रुक के काम करके वो फिर जाता है। तो जिस दिन कंपनीज में अप्रेजल, बोनस, सैलरी इंक्रीमेंट, ये सब आएगा ना, सबसे पहले आप लोगों, इस तरह के जो इंसान होंगे, इस तरह का जो एम्प्लॉयज होंगे डिपार्टमेंट में या इंडस्ट्रीज में, सबसे पहले उनका इस तरह से अपॉर्चुनिटीज या उनका इस तरह से प्रमोशन, अप्रेजल बिना कोई मेहनत, बिना कोई एफर्ट आपको मिलेगा। एकदम 200% ये सच्चाई है। आपको अगर 1% काम दिया गया, आप उसका 10% बना के दे दो काम, आप फिर देखो आपका ग्रोथ होता है कि नहीं होता है। लेकिन हम सब यही बेवकूफ यही करते हैं कि छुट्टी हुआ, चलो घर चलते हैं, अब और नहीं। और उसके बाद लास्ट में आके अपना रोना रोता है, यार साल बढ़ गया यार, मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, मेरा पॉलिसी, मेरा सैलरी नहीं बढ़ा है। अरे क्या बढ़ेगा? क्या काम कर रहे हो तुम? वहां जाके एवरी डे वही वर्क कर रहे हो, ना कुछ नयापन, ना कुछ नया, ना कुछ एक्स्ट्रा अपना एफर्ट लगा रहे हो ताकि मैं ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ा सकूं। तो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन सोचेगा क्यों? ऑर्गेनाइजेशन को पता है आप क्या काम करते हो। आपके हर एक मोमेंट को ऑर्गेनाइजेशन लोकेट करता है, हमेशा याद रखना। ये है पहला, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। मैंने जो कहा, अगर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट अगर आप चाहते हो तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज मस्ट इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्राई टू वर्क अ लिटिल एक्स्ट्रा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, देन ओनली आप ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में आपका सबसे बड़ा सहयोग बनेगा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन और डेवलप होगा, तब आपको भी वो अप्रेजल मिलेगा, आपको भी वो इनाम मिलेगा, सैलरी मिलेगा, आपको भी वो प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से नहीं मिलता है। बहुत जन देखिएगा, आपके आप जहां पर जाते हो टाटा मोटर्स में, बहुत सारा ऐसे एम्प्लॉय है कानाफूसी करते रहते हैं, यार इस बार मेरा ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सैलरी नहीं बढ़ा, यार इतना कम नहीं हो रहा है, छुट्टी बिठा दे रहा है। मैनेजमेंट को पता है कि इन बंदों से कुछ काम होने वाला नहीं है। ये बंदा अपने आप को डेवलपमेंट कभी नहीं करेगा, ये बंदा अपने आप को स्किलफुल कभी नहीं दिखाएगा। जो काम सीख के आया है आज तक, वो 20-25 साल से वही काम एक भर लगातार उसी तरह से किए जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका वो प्रमोशन वगैरह रोक दिया जाता है, नहीं रुकता है। ये आपको अंदर की बात बता रहा हूं। और अगर विश्वास नहीं है ना, तो आप तो अभी इंटर्नशिप कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको जॉब मिल गया, आप ये चीज एकदम प्रैक्टिकली करके देखना, यू विल गोइंग टू गेट द रिजल्ट। Am I clear? So this is the called the macro level HRD models. Number one is individual development, number two is organizational development. कोई डाउट है इसमें? No, sir. Any doubt? Okay, ma'am, please go to the next slide. A rate of return approach, RPA, a rate of return, RPA, a rate of return approach. This is the full form of RPA. What is this? The rate of return approach, RPA, is common method for evaluating the effectiveness of HRT initiative. अच्छा, आपको रिजल्ट, जो आपका मार्क्स या आप बीइंग एन एचआरडी, आपको कैसे इवैल्यूएट किया जाता है? देखो, एचआरडी का भी नंबरिंग होता है, इसको इतना मार्क्स मिला, इसको इतना मार्क मिला। तो वो जो नंबरिंग है, वो जो मतलब आपको जो ग्रेड मिलता है, वो ग्रेड तैयार होता है आरपीए से, रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। फुल फॉर्म ऑफ आरपीए इज रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। देखो, पहला लाइन बहुत सुंदर लिखा है, द रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच और आरपीए इज कॉमन मेथड, एक सिंपल कॉमन मेथड है जहां आप एचआरडी का इफेक्टिवनेस, उसका परफॉर्मेंस को
इवैल्यूएट कर सकते हो। कैसे? पहला है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आप इंडस्ट्री में रहते हुए कितना बचत आप कंपनीज के लिए किए हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खर्चा बचाना, खर्चे कम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैनेजमेंट अगर दिख जाता है कि ये फिजूल खर्ची वाला इंसान नहीं है, ये हमेशा इंडस्ट्रीज के लिए, कंपनी के लिए पैसा बचाता है, तो वो पूरा जोर लगा देगा कि आपको डेवलपमेंट करवाने के लिए। और जब आप चाहोगे कि अपना नौकरी कहीं दूसरा कंपनी से कर जाए, निकल करने के लिए चला जाओ, तो आपको कंपनी कभी जाने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है इतना अच्छा इंसान मुझे नेक्स्ट नहीं मिलेगा। RPA involve conducting a cost benefit analysis to determine the financial benefit of HRD programs. This include calculating the cost of training, development and implementation, as well as the benefit of increased productivity, reduced error and improved employee performance. अब तनुजा एक बात बता, तू जब इंटर्नशिप कर रही थी तो एचआरडी तुमको कभी कोई खाना वाना ऑफर किया है? ट्रेनिंग जब कर रही थी, ऐसा कुछ नाश्ता, टिफिन, लंच, ऐसा कुछ ऑफर हुआ है? सर 2 बार कैंटीन में खाना जाता है, खाया तो। अच्छा, कैंटीन में खाना जाता है, ठीक है, तब तुमको पता नहीं है। एचआरडी ट्रेनिंग को इफेक्टिव वे में कंप्लीट करवाने के लिए बहुत सारा कॉस्ट रिडक्शन करता है। कैसे? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, समझ लो। सपोज जब ट्रेनिंग करवाया जाता है, जब आप लोग बाहर ट्रेनिंग में जाते हो, बहुत सारे कंपनीज है जो अपने एम्प्लॉयज को एफिशिएंट बनाने के लिए, एम्प्लॉयज को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, दे यूज टू सेंड देयर एम्प्लॉयज टू अदर्स, टू अदर स्टेट और टू अदर, मतलब other town or city to get an employee to take the training। तो वहां जाके उनको होटल में रहना, 2 वक्त का या 3 वक्त का खाना दिलाना, ये सब क्या है? एचआरडी ये सब प्लानिंग करते हैं। एचआरडी कैसे प्लानिंग करते हैं, मैं आपको एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टिफिन कर रहे हो, तो टिफिन में अगर 4 पूरी सब्जी, 1 मीठा दिया जाए, तो वो देखेगा कि 4 पूरी, 1 सब्जी और 2 मीठा अगर मैं करने जाऊं, अभी 10 रुपया 20 मीठा है, 2 मीठा मतलब 20 रुपया, 4 कचौड़ी का 20 रुपया विथ सब्जी। 4 कचौड़ी का 20 रुपया, 5 रुपया का नहीं होता है, एक एक कचौड़ी का 10 रुपया, सपोज 4 कचौड़ी या 2 कचौड़ी जो भी है 20 रुपये, मतलब एक एक एम्प्लॉयमेंट के लिए 80 रुपया से 60 रुपया, और एक कोल्ड ड्रिंक छोटा सा एक माजा 10 रुपए। सपोज एक टिफिन बॉक्स जो मैं तैयार कर रहा हूँ, वो एक एम्प्लॉय को मैं अगर ट्रेनिंग के वक्त दे रहा हूँ, वो मतलब वो टिफिन करवा रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट आ रहा है 80 रुपया, ठीक है। वहीं पर मैं अगर उन्हें 3 इडली या 4 इडली या 3 इडली करवा देता हूँ, इडली थोड़ा बड़ा होता है, हैवी होता है, हैवी ब्रेकफास्ट होता है, 3 इडली करवा देता हूँ और एक वड़ा और उसके साथ एक ड्रिंक, तो मेरा 3 इडली का 20 या 30 रुपया और एक वड़ा 10 रुपया, 40 रुपया और एक ड्रिंक 50 रुपया, मतलब मेरा यहाँ 30 रुपया का सेविंग्स हुआ। एक एम्प्लॉय के पीछे अगर 30 रुपया मेरा सेव होता है, तो 10 एम्प्लॉय के लिए मेरा 300 रुपीज जो एक्स्ट्रा निकल जा रहा था, वो मैं कंपनी को वापस कर सकता हूं, मैं बचा रहा हूं पैसा। इस तरह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है बाय एचआरडी। हमेशा उनका प्रायोरिटी बना रहता है कि मैं कितना कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपना ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट इफेक्टिव वे में चला सकूं। समझ में आ गया तनुजा? इज इट क्लियर टू यू? Yes. Now, next is tangible and intangible benefit. What is this tangible and intangible benefit? Uh, Rate of return approach and I consider both tangible and intangible benefit. Tangible benefit can be measured directly, such as increased sales, reduced cost, or improved efficiency. Intangible benefits such as improved employee morale, increased job satisfaction, enhanced customer loyalty, and more difficult to quantify. देखो, कंपनी का खर्चा ना
दो तरह से और कम किया जाता है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। अब टेंजिबल वाला समझा दो। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? सेल्स को बढ़ाना, जो आप ना देख सकते हो, सेल्स को बढ़ाना। ठीक है। कॉस्ट, जो मैंने इडली और कचौड़ी का एग्जाम्पल दिया, उस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस करना, एफिशिएंट बनाना एम्प्लॉयज को, ताकि खर्चा कम हो जाए। ये है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या? आप स्पर्श करके देख के समझ सकते हो। और इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जो आप सिर्फ आपके महसूस कर सकते हो, लेकिन उसे पकड़ सकते हो ना ही देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स। कैसे? इससे भी आप एम्प्लॉयज या प्रोडक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा सकते हो। कैसे? सपोज 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, किसी दिन मैनेजमेंट ने कहा कि आप 10 आज थोड़ा 1 घंटा ओवर टाइम कर दीजिए, ठीक है, प्लीज, बेहतर होगा। तो ये रिक्वेस्ट देख के बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है रुक जाते हैं और गुडविल समझ के वो काम कर देते हैं। तो जैसा ये गुडविल समझ के एक्स्ट्रा काम कर देते हैं, मतलब 10 ने 1-1 घंटा काम किया, मतलब मिनिमम 10 आवर्स ऑफ वर्क बढ़ गया, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ गया। बाहर से जो रिडक्शन होता, बाहर से अगर एम्प्लॉयज हम एक्स्ट्रा लाके वो काम करवाते, तो वो मेरा कॉस्ट बढ़ जाता। इससे क्या हुआ? एक्स्ट्रा 1-1 घंटा सबने एक एक काम जब कर दिया, तो उससे मेरा लेबर कॉस्ट भी घट गया। इसे कहते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब सिर्फ आपने महसूस किया, बाकी ना कुछ देखा और ना कोई आपने कुछ टच किया, आपने सिर्फ उसे बोल के महसूस करवाया। जैसे गुडविल, ये बहुत बड़ा चीज है। ठीक है। किसी ने, आपके दोस्त ने कहा कि भाई आज थोड़ा सा 1 घंटा मेरे लिए काम कर दे, कल मैं तेरे लिए, आज वो मुसीबत में है, आपने उसका हेल्प कर दिया, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा, उसके चलते कंपनी का लॉस नहीं हुआ और आपने उसको हेल्प कर दिया। कभी ऐसा मौका मिले तो वो भी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो ये सब चीजें क्या है? कंपनीज को आगे तो बढ़ाता है, लेकिन ये सब चीज आप महसूस कर सकते हो, पकड़ में या देख नहीं सकते हो। दिस टाइप ऑफ हेल्प और दिस टाइप ऑफ फेवर और दिस टाइप ऑफ बेनिफिट इज कॉल्ड इंटेंजिबल बेनिफिट। और लास्ट में है ROI। ROI और या फिर RPA, रिटर्न अप्रोच। क्या हुआ? सर कल इसको पढ़ा दीजिएगा ना, तो कहीं जाना है। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।